Hello students, I am Praveen Tripathi, welcomes you in the very first session of your computer subject for class 8. So students, from today we are going to start your video lecture series for the computer subject also. And in this session, we will cover our chapter first, which is about the computer networking. And in this chapter, we will find how the computer networking affects our day-to-day life and how it is been essential for our life. Okay, so you will find very much interesting things related to networking, related to computer networking, I must say, in this session. So without any further delay, let's get started. So students, we will just do this chapter from the PPT presentation slides. Okay, so now here I'm going to start slides and in which we will study. Okay, so I am welcoming you on the behalf of Lal Public School in your online classes, and I hope that you are all are attending the whole online classes on Zoom. Okay, student, first thing I must clear to you that computer is also a very interesting and important subject. If you just go and explore the digital world, and I must say that digital world is all over there, so you must have to be concentrate in the computer classes also. So let's get started. So here is your chapter first, and this is your chapter first part one. And our chapter name is computer networking. And as you can see on your screen that there are 3-4 people who are handling the cable and joining the whole globe with this networking cable. So in this the picture, in the very first picture, you can understand that this is the summary of this chapter. This means कि पूरी जो दुनिया है वो networking से जुड़ी हुई है ना? So the whole world is connected to the networking. Okay, so let's find out what we are going to study today. So our topics for today is the computer network. What is computer network? You have to understand it in the correct definition, and what are the components of computer network. And then we will find out what are the advantages of networking, applications of networking, where it's being used, and types of computer network. This is very important thing. Okay, so let's start it. So yes, introduction part. What is computer network? First of all, you have to understand that computer has emerged as a major source of communication. Okay, let's take an example. You take daily classes on Zoom. Okay, Zoom पे आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो Zoom भी क्या है, हमें एक नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है. तो हम वायरलेस नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है, आप रेज हैंड करते हैं एंड डायरेक्टली आपको उसका जवाब मिलता है आपके रिस्पेक्टेड टीचर से. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ वायरलेस नेटवर्किंग, और वी कैन से द कंप्यूटर नेटवर्किंग. तो यहाँ से हम समराइज कर सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इमर्ज्ड हुआ है और ये कम्युनिकेशन का एक मेजर सोर्स बन चुका है ना. आप सोशल मीडिया ले लीजिए, कुछ भी देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग ने बहुत इमर्ज किया है. ओके, so in the recent few years computer has emerged as a major source of communication which has increased the utility of this device many times. Okay, तो इसने कंप्यूटर नेटवर्किंग ने कंप्यूटर डिवाइस की जो यूटिलिटी है उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर, okay, on a very large scale it has emerged and enhanced. So all this happened due to the connectivity of two or more computing device through some communication channel enabling them to share their information. Okay, तो ये सब कैसे हुआ है? कंप्यूटिंग डिवाइस के कारण और किसके कारण? कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा. कम्युनिकेशन चैनल में हम इंटरनेट बोल सकते हैं. ओके, एंड इनेबलिंग देम टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन. और ये हमें किस लिए इनेबल करता है, हमें कौन सी सुविधा प्रोवाइड करता है? आज मैं कहूँ कि नेटवर्किंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो इट प्रोवाइड वी कैन शेयर आवर इंफॉर्मेशन, we can share our resources with each other very quickly. As I am teaching you on online platform, it's also a kind of information sharing, or we can say the resource sharing. आपके पास PDFs आ रही हैं, टेस्ट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? रिसोर्स शेयर हो रहा है किसके द्वारा? ऑनलाइन मेथड के द्वारा. तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन नेटवर्किंग के द्वारा ये हो रहा है. So let's find out what's in next slide. Okay, so we have to understand the correct definition of computer network. Okay, so we concentrate on the screen. A computer network is a collection of computers. Okay, तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, या हम बोले कि कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस.
लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्क कीजिए कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो हमें कंप्यूटर से यूज करना होगा। अगर हम बात करते केवल नेटवर्क की तो यहाँ आता इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। ओके, इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस भी आ सकता था, लेकिन हमें किसकी डेफिनेशन देनी है, कंप्यूटर नेटवर्क की। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स। So once again, let's recite with me. A computer network is a collection of computers connected to share information and resources. Mark my point, you don't need to just forget this line, okay? Because this line is very important. Share information and resources with each other. So this is called the computer network. The computers are connected using a communication medium such as cable, टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट। ठीक है, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कनेक्टेड रहेंगे या तो केबल से, टेलीफोन लाइन से या सैटेलाइट से, जैसे हम वायरलेस मीडियम बोल सकते हैं। जैसे कि जूम पे आप किस मीडियम से कनेक्टेड होते हो, वायरलेस मीडियम से। A computer network enables computer to share hardware devices, exchange files and etc. तो कंप्यूटर नेटवर्क हमें क्या देता है, हम हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आपके एक ही ऑफिस में 4 to 5 कंप्यूटर्स है एंड 1 प्रिंटर है, तो आप क्या करेंगे, उन 4 to 5 कंप्यूटर्स को उस एक प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल नेटवर्किंग। ओके, सो I hope you have understood what is computer network in a very much better way. So let's proceed again. A network can be as small as just 2 computer sharing resources. Okay, तो जब भी हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर ही हो। यस, ये लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, बट अगर कोई 2 कंप्यूटर्स या 2 मोबाइल डिवाइसेस आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं ना, या शेयर इट से पहले आप करते थे, अब नहीं करना है। ओके, तो जो ये भी जो शेयरिंग रिसोर्सेज हैं, ये भी क्या है, एक एग्जांपल ही है कंप्यूटर नेटवर्क का या नेटवर्किंग का। तो ये इतना स्मॉल भी हो सकता है कि जहां आप 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है जहां आप कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करते हैं। तो वंस अगेन आप स्क्रीन पर देखिए, अ नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज जस्ट 2 कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्सेज विद ईच अदर and as large as millions of computers connected with each other, but their motto is to share their resources. So you need to write this line everywhere whenever you talk about networks. Okay, as you can see in the picture that whole the globe, whole the world is connected with each other through internet, through supercomputers and etc. Okay, so yes, now we will look the components of computer network. Okay, now we will find what are the components of computer network. So let's find. Okay, so here are the components. What are the components? Message, sender, receiver, transmission media या transmission connections हम लोग बोल सकते हैं, and the protocols. ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, कि यही चीजें हम यूज करते हैं जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। ओके, सो लेट्स रिसाइट एंड लेट्स लर्न अगेन विद मी। मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क इज मैसेज। मैसेज क्या होता है, जैसे कि आप सभी मैसेज भेजते हैं, करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एक्सेट्रा पे, तो मैसेज क्या होता है, एक सेट ऑफ या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि हम जूम पे बात करें, तो अगर हम जूम पे क्लासेस ले रहे हैं तो वहां पर मैसेज क्या हुआ, हमारा जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वही मैसेज हुआ, यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपके जो टीचर्स हैं वो आपको पीडीएफ भेजते हैं, तो पीडीएफ क्या हुआ, एक मैसेज हुआ, यानी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। ओके, अ मैसेज इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द नेटवर्क। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क पे जो कुछ भी ट्रांसफर होने वाला है, which will be referred as message. Okay, so I hope आपको समझ में आ गया होगा। It could be text, ये text भी हो सकता है, voice भी हो सकती है, image भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, और कुछ भी other medium हो सकता है। So this is all about the message in computer network. Now next, understand the sender. Okay, so the sender is the source of message. आखिर message आ कहाँ से रहा है? Who is the sender? Okay, it could be a computer or the person who sent the message. तो ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है और ये कोई कंप्यूटर डिवाइस भी हो सकता है। So this is very easy to understand, I guess, है ना? And receiver.
रिसीवर इज द पर्सन और कंप्यूटर हु रिसीव्स द मैसेज, ठीक है। अब जैसे आपके टीचर ने आपको पीडीएफ फाइल्स भेजी तो आपका टीचर यानी हम सभी क्या हुए, सेंडर, एंड आप क्या हुए, रिसीवर। बहुत इजी है। एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट टू कन्वे द रिस्पॉन्स, और वो कन्विंस करता है, कन्वे करता है कि ये मैसेज है क्या, उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर। Coming to the next slide, anyways, the transmission medium and protocol being described. So transmission medium, it is the communication channel, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे हैं कौन मैसेज है, कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है, बट ये कौन से ट्रांसमिशन मीडियम पर बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। सो इट कैन बी द गाइडेड मीडिया और इट कैन बी द अनगाइडेड मीडिया, मींस इट कैन बी द वायरलेस एंड wired media. Okay, if we can connect two computers with the help of wire to just sharing the resources, so it will be the wire, okay, wired guided media. Or if we connect two devices with the Bluetooth or wireless medium, so it will be called as unguided medium. So we have to just choose the transmission medium. Okay, so this is about the transmission medium कि हम कौन से communication channel के through अपना message transfer करेंगे sender to receiver. ओके, प्रोटोकॉल। ओके, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। मार्क माय पॉइंट, प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट एवरी कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉलो। ओके, जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप की बात करें, स्नैपचैट की बात करें, या कुछ भी आप ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें, तो हम सभी जो है नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल से यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो HTTP लगा हुआ आता है आगे आगे, या HTTPS लगा हुआ आता है। तो ये सब क्या है, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम सभी को फॉलो करना होता है। ओके, so protocol, it is the standard set of rules used by the two system to communicate message across the network. So I hope you have understood the message, sender, receiver, transmission medium and protocol. So let's explore what is in the next slide. So advantages of networking. Now we will explore what are the advantages of networking, why we use the networking. I guess आप सभी को समझ में आ गया होगा अभी तक तो कि हम नेटवर्किंग को क्यों यूज करते हैं। बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करना, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज द डेटा शेयरिंग, ठीक है। मैं आपको कब से एग्जांपल दे रहा हूँ पीडीएफ का, है ना। तो डेटा शेयरिंग तो सबसे मेन एडवांटेज है नेटवर्किंग का। आप कोई भी डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो नेटवर्किंग के थ्रू इन अ वेरी क्विक मैनर। ओके, एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क हमें सिक्योरिटी अलाउ करता है। ओके, क्योंकि ऑथराइज्ड पीपल भी इसमें एंगेज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो दूसरे को, तो जिसका कांटेक्ट आप पे सेव होगा आप केवल उसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। या जूम की बात करें तो जूम की लिंक हमने जिसको भेजी होगी, जिसको हमने ऑथराइज्ड किया होगा, उसी से हम कनेक्ट होंगे। Okay, so it provides the security feature also and the efficiency. Yes, it provides the efficiency because कोई भी मॉडिफिकेशंस करें, अपग्रेडेशन करें, डिलीशन करें, तो वो सिंगल पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। यानी ये प्रभावशाली होता है, ये बहुत ही एफिशिएंट है नेटवर्किंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अभी आप मार्केट में जाएंगे, आप पीडीएफ को जो भी प्रिंट निकालेंगे, आप उसके पर पेज के 1, 2 या 5 रुपीज देंगे। बट अगर आप केवल पीडीएफ से पढ़ेंगे ऑनलाइन मेथड से, तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, केवल नेटवर्क लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे रिसोर्स शेयर कर सकते हैं हम, एक फाइल दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। सो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग इज द डेटा शेयरिंग, security, efficiency, or we can say that networking is very efficient and cost effective. Okay, now we will look applications of networking where they are being used. So networking has become an important part of business, industries, education and entertainment. Mark my point, education is now a very important and crucial application of networking. Further, it was being used in the military, business, industries and entertainment medium, but now it's so very crucial in the education field also. Okay, and internet is the largest computer network. Whenever we talk about computer network, the first thing which clicked in my mind, I hope in your mind also, is the internet. जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज अगर हमारे माइंड में कुछ क्लिक करती है तो वो है इंटरनेट। ओके, सो इट इज द वन ऑफ लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क।
Okay, so some other applications are electronic messaging. ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी मैसेजिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग है ना, ईमेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग प्रोवाइड करता है कौन, networking. And electronic data interchange, EDI, once again transferring digital data on a network is a very simple. Teleconferencing, yes, we are connected with the teleconferencing, we can say the video conferencing. Okay, and the last but not the least, electronic fund transfer. आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। यूपीआई पेमेंट ले लो, पेटीएम ले लो, फोन पे ले लो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का ही तो एक एग्जांपल है। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी था एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग। आई होप ऑल यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो। ओके, एंड नाउ वी विल लुक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी तक हमने बात की कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये कहाँ यूज आता है, ओके, एंड इसके कंपोनेंट्स क्या है, हमने डिटेल में पढ़ा। लेकिन अब हमें पढ़ना होगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही टाइप के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर डिमांड, it is being categorized in the 4 categories. Okay, so based on the geographical areas also, computer network geographical area पे बहुत depend करता है। Okay, and across with the computer network is spread, यानी कहाँ तक computer network को आपको spread करना है, फैलाना है, उसके हिसाब से यहाँ पर 4 categories में divide किया गया है। So आपको ये सब याद करना है, मेरे साथ बोलेंगे PAN, PAN, Personal Area Network, LAN, LAN, Local Area Network, MAN, MAN, Metropolitan Area Network, and WAN, WAN, Wide Area Network. So this is the types of computer network. In the further slide, in the further videos, we will look in the detail what is PAN, LAN, MAN, and WAN. Okay. So I hope you have understood the whole session of computer and enjoyed it very much. Thank you for today. Take care.